ये जो साउथ अमेरिका है, we never focused on this region, and mostly we are more interested to understand about America. America means United States of America, right? And why South America is getting currency, especially in the new system which is emerging now because of the emergence of different poles of powers. Usme South America has got importance, especially the Brazil, Argentina, and other nations. And this is the reason that China is creating its influence in South American nations. And therefore, I say that this is the golden opportunity for Pakistan that with China, because China is our strategic partner, so with China, we can also have our say in South American nations. We all remember that Americans, they believe that this is their area of influence. Monroe Doctrine, which was given in 1821, ठीक है ना तार 1821 No, 1823. 1823 थैंक यू 1823 के अंदर तो उसके बाद वो कहते थे कि किसी की भी यहाँ पे इंटरफेरेंस हम टॉलरेट नहीं करेंगे सो चूंकि वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर इकोनॉमी एंड साउथ अमेरिकन दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी सो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम we can cooperate with each other. For instance, Brazilians they are selling $10 billion meat to Middle Eastern countries. So since we have a project of the CPAC, through CPAC we can invite them कि यहाँ पे लगाएं इंडस्ट्री और यहाँ से वो बेचे वहाँ पे तो मेरा ख्याल है सच कोऑपरेशन जो है वो इट वुड बी म्यूचुअल बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस साउथ अमेरिकन नेशंस एज वेल एज फॉर पाकिस्तान सो यहाँ पे सवालात ये हैं कि बुनियादी तौर के ऊपर जो हमने यहाँ भी दिए हैं कि पाकिस्तान relations with South American nations क्या हैं at this moment what is the status of such relationship उसमें challenges हमें क्या हैं उसके prospects and opportunities वहाँ पे क्या emerge कर रही हैं चूंकि मैडम नायला चौहान served a lot in South American nation तो मेरा ख्याल है उस हवाले से हमें काफ़ी इनकी जो insight है वो हमें फ़ायदा देगी तो with these words, again, I would say thank you very much, madam, for your kind presence here in our center. Thank you so much for giving me this opportunity to interact with you. My name is Naela Chohan, as most of you have found out. I'm a former ambassador. I'm also a Qaidian. I was from the IR department, so long ago. I'm from the 81 batch. आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे. That's the time I was there. चलो पैदा हो गए थे. Good. So yes, I'm a very proud Qaidian. And I think there's something special about being Qaidian. Not everybody understands it. When I did my CSS that year, it was amazing that in my class, we were a class of 20, 17 got into civil service in different services, including foreign service, police service, DMG. So the class of 81 was the most famous one in the sense that itna छक्का किसी और year की class ने नहीं किया जितना हमने किया था. But I was a reluctant diplomat, I must say. I was a reluctant civil servant. That's a different story. I won't waste your time on. Maybe someday we'll sit in the खोखा. मजीद के खोखे में कोरियन वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये सारे नाम हमने दिए थे क्योंकि जो पढ़ के आते थे फिर वो दिमाग में खप होती थी फिर मजीद बैठा होता था क्या ये तेरी डिश ये तो बिल्कुल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की तरह है तो वो जो हम पढ़ते थे उसकी डिशों का नाम रख देते थे जो अब भी मेरा ख्याल है चल रही है आई डोंट थिंक उसके बच्चे को भी पता होगा but that was the time these names were given by us as IR students क्योंकि खोखे पे ही बैठ के दिन गुजरता था ज्यादा intellectual discussion भी होती थी I'm sure अभी भी होती होगी लेकिन this a little background that I'm also part of you I was on this side of the table for me not very long ago but for you it's prehistoric but never mind it's a difference in perspective coming back to relations with Latin America basically Dr. Munawar I'm very curious that you have added Africa also
I was the drafter of Look Africa policy in the Foreign Office in the 2013-14. So since then, I have been working on this, and even now, they had Africa Day in Institute of Strategic Studies. Earlier on, they used to. When I was there, we were the first Africa Day celebrated was in the MOFA, but now I think they do it in Institute. So I have had that linkage with Africa also. We'll talk on it some other day. How do you define South America? What is the difference between South America and Latin America? साउथ अमेरिका अगर आप कॉन्टिनेंट देखें मैप देखें बिकॉज नक्शा बेटा जरूर देखो आप लोग माशाल्लाह आप सीनियर हो रिसर्च के लिए सबसे पहले डेवलप अ पर्सपेक्टिव व्हाट यू आर रिसर्चिंग ऑन और वो आपको नहीं होगा जब तक आप नक्शा नहीं देखोगे बेसिकली अमेरिका का एक ऊपर वो बिल्ली सी बनी हुई है और बिल्ली के नीचे फिर वो उसकी एक दुम है लंबी सी वो तो हो गया नॉर्थ अमेरिका फिर उसके नीचे साउथ अमेरिका है जो कि कुछ कुछ हिंदुस्तान के नक्शे से मिलता है इससे तो दिखेगा नहीं आप लोगों को बट नेवरदलेस ऊपर जो है वो नॉर्थ अमेरिका है ठीक है नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से ममालिक आते हैं उसके बाद आता है सेंट्रल अमेरिका हाँ, जल्दी नक्शा खोलो अम्मा गूगल से पूछो उसमें जो है सेंट्रल अमेरिका में मेक्सिको आता है पनामा आता है ग्वाटेमाला आता है ये सारे जो पोर्टोरिको आता है ये सारे जो है ये सेंट्रल अमेरिका है और फिर नीचे आता है साउथ अमेरिका जो कि ब्राजील डाउनवर्ड्स है ठीक है और लैटिन अमेरिका जो है लैटिन अमेरिका इज बेसिकली द होल ऑफ अमेरिका दैट इज Latin Latinos Latin speaking so it is by language which includes Central America which includes South America and funny enough United States वो एक लतीफा था कि बराक ओबामा था और जस्टिन ट्रूडो था और ये बैठे हुए एक दूसरे को ना इनके पास टाइम मशीन आ गई और देख रहे थे कि जी आज से 100 साल बाद व्हाट विल बी द नेशनल लैंग्वेज तो उन्होंने मशीन में डाला टाइम डाला तो कैनेडियन ने डाला तो जो कंप्यूटर ने जवाब दिया वो परेशान हो गया तो ओबामा ने पूछा क्या जवाब आया उसने कहा आई डोंट इवन अंडरस्टैंड उसने कहा क्यों उसने कहा ये तो कुछ लिखा हुआ है जो मुझे पता ही नहीं है ये जुबान क्या है तो ओबामा ने देखा तो ओह दिस इज पंजाबी सो कैनेडा's language in 100 years would be Punjabi because पंजाबी खासकर सिख कम्युनिटी वहां बहुत बड़ी है they don't call themselves Indian because of Khalistan they basically call themselves Punjabi so अब वैंकूवर वगैरह आप देखिए उनका डिफेंस मिनिस्टर पंजाबी सो वो हुआ अब ओबामा ने जब डाला तो वो हैरान हो गया ट्रूडो ने पूछा ये तुम्हारा क्या निकला उसने कहा स्पेनिश सो इन 100 years United States would also have because a lot of migration from South America, Central America has been there. And mashallah, you ask students of various studies center, you would know कि Mexican Empire क्या थी और California की history क्या है. So Spanish is very much part of United States as well, but obviously they have made it Anglophone. So it is English as yet, but Spanish is second language, just like in Canada it is English and then it is French. And the Canadian French is very different from the French French. Coming back to South America. अब साउथ अमेरिका जो है जिसमें ब्राजील है अर्जेंटीना है चिले है इक्वाडोर है पेरू है चिले है पैराग्वे उरुग्वे बोलिविया ये सारे ममालिक हैं तो काफी सारे ममालिक हैं साउथ अमेरिका के पाकिस्तान रिलेशंस
It's an interesting historical evolution. क्योंकि पाकिस्तान अगर टेक्निकली देखा जाए तो लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका, लेट्स फोकस ऑन साउथ अमेरिका, काफी दूर है. When I was ambassador to Argentina, based in Buenos Aires, it would take me 32 hours to come to Pakistan. Because from Buenos Aires, I would go to Toronto. From Toronto, I would catch PIA to come down. So I would go from South Pole to North Pole to Pakistan because direct flights हमारी उस तरह की नहीं है. अब मेरा ख्याल है एमिरेट्स वगैरह कुछ कर रहे हैं. So the distance itself becomes a deterrent when it comes to fortifying relationship. But political interests are not dependent on physical or geographic distances. Sometimes countries next door can be a problem and you may not have good relations with them. And sometimes countries far away can be very close to you and you can have good cooperation. So Pakistan established its relationship with Brazil, with Argentina, with even Cuba in the early 50s, soon after our independence. Now you would say, why? How could we think of these countries so far away and develop relations with them? बेसिकली आप तो जो पाकिस्तान स्टडीज की उनको ज्यादा पता होगा, दूसरों को भी आई एम श्योर पता होगा कि पाकिस्तान की जो आजादी, डू आई स्पीक इन इंग्लिश और उर्दू जैसे बोल रही चालू आई एम कंफर्टेबल विद एनी आई कैन बी फ्रेंच स्पीकिंग स्पेनिश ऑल्सो तो जी पाकिस्तान की जो आजादी थी वो बड़े मुश्किल हालात में थी और जब आपकी पार्टीशन हुई तो बहुत सी आपकी रिसोर्सेज आपको हक नहीं मिला इंक्लूडिंग कश्मीर जो कि अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन रिकॉल तो उस बिसीज मेंटेलिटी में जब आपने यूएन का हिस्सा बने तो उस वक्त आपको दोस्तों की शिद्दत से जरूरत थी क्योंकि आपके अपने रीजन में आप देखिए कि अफगानिस्तान हैड इनिशियली वोटेड अगेंस्ट योर मेंबरशिप ऑफ द यूएन ऑल्दो लेटर ऑन दे डिफेंडेड कि जी वो गलती हो गई थी उसने वो कुछ कहना चाह रहा था क्या कुछ किया था उनका जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था यू कैन हैव 101 excuses the fact is that they were not willing to have Pakistan as independent state because of their perceptions of the political history of the region which is their perception which is historically can be easily challenged दूसरी तरफ आपके हिंदुस्तान था जिसको इफ यू आस्क मी मेरे राय में तो आपकी आजादी ही ना होती अगर उनको यकीन होता कि आप अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे आपको इंडिपेंडेंस इस सुकून से दी गई कि इन्होंने अगले दिन गिर जाना है और इन्होंने फेडरेशन बन जाना है या कन्फेडरेशन बन जाना है इंडिया का तो ठीक है खड़ा होने दो उन्हें नहीं पता था ये बड़ी ढीठ कौम है बड़ी रिजिलियंट है धक्के मुक्के खा के भी खड़े हो जाएंगे और अल्लाह का शुक्र है अभी तक धक्के भी खा रहे हैं और खड़े भी हैं और अल्लाह खड़ा रखे और अल्लाह इज्जत दे तो यूएन में जब हम गए तो हमें दोस्तों की अशद जरूरत थी चाहे वो कहीं भी और यूएन तो मतलब जैसा ये एक कमरा है सारे बैठे हैं आप कहीं से भी आए हो इस वक्त हम सारे इकट्ठे हैं इसी तरह यूएन में भी मेंबर्स कहीं के भी हों उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इकट्ठे एक ही यूएनजीए में विच इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल मिलते हैं बात करते हैं मौजूआत पे डिस्कस करते हैं तो इट ब्रिंग्स यू ऑल टुगेदर वहां पे हमें एहसास हुआ कि ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं आप देखिए कि जब कश्मीर का इशू आया अर्जेंटीना ने हमें सपोर्ट किया तो हमने 1951 में अपनी एम्बेसी वहां खोली ब्राजील के साथ भी हमने बहुत पहले कर लिया था राब्ता क्यूबा के साथ 1955 में रिलेशन और इसी तरह
हमने सोचा कि मेजर कंट्रीज को हम पहले टारगेट करें बिकॉज वी आर रिसोर्स constrained country. We couldn't open embassy everywhere. We still can't. We hardly have 80 missions out of 193 countries of the world, which isn't a very big, presence physical. बट देन एक एक ऑफिसर को 10 ममालिक दे दिए जाते हैं कि अब तुम संभालो और बजट नहीं दिया जाता कि जाओ कैसे और मिलो कैसे और रवाबित कैसे बनाओ बट एनी वे पीपल लाइक मी आई वुड ट्रैवल इकोनॉमी बट आई वुड गो टू ऑल दीज कंट्रीज कि पाकिस्तान के लिए मुझे अपनी अफसरी की ज़रूरत नहीं थी मुझे अपने मुल्क के रवाबित की ज़रूरत थी सो आई वुड ट्रैवल इकोनॉमी आई वुड गो एवरीवेयर and I fortified the relations between the countries of my accreditation and Pakistan. अब नक्शा नहीं वरना इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग कि अगर आप ब्राजील को देखें ब्राजील बहुत बड़ा मुल्क है अब ब्राजील ऑल्दो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हमारे एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन भी है और एरियाज में भी हमारी कोऑपरेशन है लेकिन having lived in Argentina, I would see it as nearer to India than to us, and Argentina nearer to Pakistan than to India. So कई दफा अब आप देखें कि जब आगाज हुआ रवाबित का तो उन्होंने हमें कश्मीर पे सपोर्ट किया लेकिन जब फॉकलैंड क्राइसिस हुआ can anyone tell when it happened Falkland crisis Margaret Thatcher's time very true और अंग्रेज उसको फॉकलैंड कहते हैं और अर्जेंटीनियंस इसको मालविनास कहते हैं बिकॉज द आइलैंड्स नेम इज मालविनास तो मालविनास वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई हैपन टू विजिट देयर छोटा सा जजीरा है कोई इतना बड़ा नहीं है और उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़ा है जिसमें ऑयल एंड गैस रिजर्व्स बहुत ज्यादा है और गोरा हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए इट कैन गो एनी डिस्टेंस सो दे सेड कि ये जी डिबेट क्या हुई जब दूसरी जंग अजीम हुई उसके बाद बहुत से उनके गोरे सोल्जर्स जो थे रिटायर मतलब जंग खत्म हो गई उनको इन्होंने मालविनास या फॉकलैंड में भेज दिया तो मैं जब गई हार्डली अ पॉपुलेशन ऑफ 5-6 हजार ब्रिट्स वाइट ब्रिट्स तो द फैसिनेटिंग पार्ट वाज दे न्यू उर्दू बेटर देन आई और वो सफीर साहिबा कैसी हैं आप मैंने कहा मुझे सुनने में गलती हो रही है या देखने में गलती हो रही है पर कोई गलती हो रही तो मैंने कहा आपको उर्दू आती है कहते हाँ मैं बड़ी अच्छी आती है कहा अच्छा पाकिस्तान को आप जानते हैं कहते हाँ बिल्कुल जानते हैं कहा किस तरह आप जानते हैं इस जजीरे में बैठे हुए मैंने कहा जी जंग अजीम में हम कराची में थे हम इधर थे उधर थे वो सारा क्योंकि वो ब्रिटिश फौजीज थे वो इस एरिया में पोस्टेड थे तो यहाँ रहने के लिए उनको उर्दू सीखना जरूरी था सो उनको उर्दू आती थी और वो उर्दू में ही उन्होंने मेरे से गुफ्तगू की बट आप अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तरीके से देखें तो 3,000 लोगों की आबादी जो है वो ब्रिटेन को जस्टिफिकेशन देती है कि वो उसको अपना जजीरा कहें जबकि ज्योग्राफिक कंटिग्यूटी और हिस्टोरिक जो है कंटिन्यूटी की अगर बात की जाए तो वो अर्जेंटीना के साथ है अब मेरे लिए एज एन एम्बेसडर इट बिकेम अ बिग चैलेंज बिकॉज अगर हम कश्मीर की बात करते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं जिसपे कि अर्जेंटीना ने शुरू में हमें सपोर्ट किया लेकिन मलविनास के बाद उनके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि अगर वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं तो वो तो यूके का हिस्सा बन जाते हैं बिकॉज वो 5,000 लोग जो है अभी हो सकता है मर भी गए बहुत सारे बिकॉज बिल्कुल बुढ़े खड़के हुए थे लेकिन अगर वोट होता है तो वो प्लेबिसिट करते हैं तो वो यूके का हिस्सा बन जाता है कॉन्सिक्वेंटली अर्जेंटीना had to
alter its position on Kashmir. And I would say that I understand your dilemma, but here we are talking about Kashmiris, which is indigenous population. The Brits in Malvinas are not indigenous population. So don't confuse the two. But obviously at the UN politics is different. So Argentina had to become very careful of that. When it came to UN reforms, Brazil, like India, was aspiring to be part of the UN Security Council, enlargement of UN Security Council. Argentina, like Pakistan, had reservations because उनके border issues इसी तरह हैं जैसे हमारे हमारे पड़ोसी के साथ हैं. So we had more similarity of positions at the UN as compared to our position, for example, with Brazil. So Argentina was a natural friend to Pakistan because our position at international issues were very similar. You are students, you can study other issues also, and you will find similarities. So ये major countries हैं basically Brazil and Argentina. लेकिन फिर आते चिले. अब आप देखें कि चिले की अगर आप नक्शा देखें तो वो जैसे एक खंजर है और वो जो दुम है साउथ अमेरिका की उधर अर्जेंटीना और चिले बॉर्डर शेयर करते हैं बिल्कुल टच समझो कि करीबन क्योंकि वो बिल्कुल एक दुम है. मैं वहां भी गई वो जो उसकी सबसे छोटी प्रोविंस है इट्स कॉल्ड टिएरा डेल फुएगो. तो आई वेंट टू एंटार्क्टिका और मैंने उस दुम से पहले पाँव नीचे रखने के इससे नीचे में गिर तो नहीं जाऊंगी क्योंकि ग्लोब में देखो तो मतलब दुनिया का खिता आखिरी है. द लास्ट लैंड पीस ऑन द planet is that. And I said, how silly of me. Gravitational force is there. I'm not going to fall off the globe by putting my foot in the water there. But I'm just joking. Okay, I have been there. और उधर बेटा fascinating. I'm giving you anecdotes because I'm sure you're researching and you have more. जब मैं वहां गई तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी सफीर उन्होंने कोई वहां देखा नहीं था और वो भी खातून. तो बड़े अखबारों में मीडिया में पाकिस्तान एम्बेसडर विजिटिंग टिएरा डेल फुएगो. तो मैं मीटिंग्स वगैरह कर रही थी गवर्नर वगैरह से. अपने कमरे में आई तो मुझे एक फोन कॉल आई. फोन कॉल आई तो कहते हैं कि जी आर यू द पाकिस्तान एम्बेसडर टू अर्जेंटीना. आई सेड यस. They said we are a group of guess what? Can you think? जी? No, not gorillas. Guess who could they be? They said we are a group of Sufis and we are from the Naqshbandi group and we have a little mosque where we do takiya. So we would like to invite you. अब मेरा इतना टाइट शेड्यूल था पर मैंने कहा this I have to see. So I went. अंदर जंगलों में कहाँ पहाड़ियों में छोटी सी मस्जिद जैसे करदोबा की मस्जिद है उस तरह से उसका छोटा मॉडल और इसी तरह फर्शी महफिल बनी हुई. तो मैंने कहा are you Muslims? He said no, we are Christians. Christians, Naqshbandis. Okay, very interesting. But it's not about religion, it's about the spirit. And it's the Sufi spirit that we adhere to. So, उनके rituals भी उसी तरह, उनका सब कुछ, but they were very much Christians. So, in this adventure land of diplomacy, one sees things which are very different from what you think about and read about in your normal life.